Hi everybody. Good morning, people. Somebody please confirm if I'm clearly audible and screen visible. Very fine. Well, I see most of you are here. Let's wait a couple of minutes. So I'll wait till 11:02 or 11:03. A few people are yet to join, I think. Okay. So starting in just a minute or two. Okay. I think we can begin. Yes. Again joining in. Very well, guys. So very good morning. Last we were doing the decision trees, which are essentially, what do we call them? Cards, right? Use of card model. The decision tree. Actually, we are moving on to. I'm trying to explain the concept of an ensemble today. What is ensemble? What is ensemble? Can somebody say ensemble? What is ensembling in routine? Generally बोलो तो क्या मतलब हुआ इसका? Yes, kind of. देख लो जरा गूगल करके देखना जरा जल्दी से. What does ensemble means? Ensemble means yes, a group of people who have certain taste or a collection of things which are which have something in common. They gel to some common platform. So that is meant by ensemble. Now we are going on to uh, कलाकारों की टुकड़ी in Hindi. Look people, here comes the murder of English by Hindi. So what is ensemble in case of predictive modeling? We're talking about ensembling. हाँ जी, ensemble हमारे उसमें क्या होता होगा, हमारे केस में क्या होता होगा? In our case, it becomes a collection of models. ये तो मतलब हुआ इसका. It is a group of models which work together somehow. That's ensemble.
जस्ट गेट द आइडिया। अभी तक आप जितने देख रहे हो, जस्ट इमेजिन यू हैव टू क्लासिफाई समथिंग, यू हैव अ क्लासिफिकेशन टास्क। और आपने क्या देखा है अभी, दिस मॉडल दैट मॉडल, यू कुड यूज सर्टेन टाइप ऑफ मॉडल्स। क्या क्या थे वो? Stochastic regression, KNN, it could be, or it could be CARD. What if you could use multiple models to give that one a decision? अभी देखेंगे, यही देखोगे आप। So within ensembles, you will see many models that can be possible like this. There can be, so one of the most popular one is random forest. Then you will see XGBoost and GBM models. वो आगे बात करेंगे इनकी। The most common one is random forest. Vasundhara, I would not label them like this is fourth model or this is which number of model. See, like logistic regression, it is just extension of linear regression. Same goes with random forest. It is an extension of a DT model. It is a collection of DT models. अभी दिखा रहा हूँ. So whatever you want to call it, you may call it sixth model or you may call it just a version of DTs. Ensemble model पहली बार देखोगे आप, हाँ ये पक्का है. What is random forest? It is collection of, हाँ जी, फॉरेस्ट कह रहा हूँ. फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत सारे पेड़ होते हैं जो जंगल बन जाता है ना, वही तो कह रहे हैं. So in that sense, it is forest. Now, what is the idea behind? Just check this out. शायद हमने पहले भी प्रोबेबिलिटी के केस में इसकी बात की थी. Say there are multiple models. हम क्या कह रहे हैं, एक रैंडम फॉरेस्ट है which is collection of many tree models. Many tree models यानी there is a tree 1, there is a tree 2 and there is a tree 3 and there can be many trees. और ये प्रेडिक्शन कैसे देता होगा? Like it is predicting for one passenger, for passenger ID 1 2 3, और इसका प्रेडिक्शन है, मैं दिखा रहा हूँ कि करता क्या, काम कैसे करता है बिहाइंड द स्क्रीन. ठीक है, तो ट्री 1 ने प्रेडिक्शन दिया है सर्वाइव, ट्री 2 ने प्रेडिक्शन दिया है नॉट सर्वाइव, ट्री 3 ने प्रेडिक्शन दिया है सर्वाइव एंड सो ऑन. ऐसे ही तो होगा यार, ऐसे ही तो होगा. हर पैसेंजर आईडी के लिए मैंने ऐसे ट्रीज बना लिए
3 4 5 10 20 जितने भी बना लिए, उस पैसेंजर का आईडी के लिए हर ट्री कुछ ना कुछ वो दे रहा होगा अपना प्रेडिक्शन, कोई 1 देगा कोई 0 देगा। तो जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो फाइनली मेरे रैंडम फॉरेस्ट का डिसीजन हो जाए। से मेजॉरिटी ने 1 डिसीजन दिया है तो मेरा रैंडम फॉरेस्ट बोलेगा हाँ ठीक है, दिस पैसेंजर मस्ट हैव सर्वाइव। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर सेइंग इट विल सर्वाइव, दिस विल सर्वाइव, दिस पर्सन। ठीक, ये हुई बात। सोच लो, कुछ सोचना है तो भी। ठीक है, अब इससे होता क्या होगा? व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज इम्पैक्टफुल? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल क्रूड एग्जांपल, तो बिल्कुल ये करके मत बैठ जाना। सपोज देयर आर दे ओके, 3 ही रखते हैं। देयर आर 3 ट्रीज इन माय मॉडल। मेरा मॉडल है 3 ट्रीज का। नाउ आई एम सेइंग ये मॉडल ऐसे हैं कि इनकी एक्यूरेसी, एंड व्हेन आई से एक्यूरेसी इट ऑटोमेटिकली मींस सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बैलेंस्ड। Say these are models with accuracy of okay 70% each। तीनों अपने आप में 70% एक्यूरेट मॉडल मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, देयर वॉज एन ऑब्जर्वेशन, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टाइटेनिक डेटा सेट में देयर वॉज ऑब्जर्वेशन, देयर वॉज पैसेंजर, देयर वॉज पैसेंजर हु एक्चुअली सर्वाइव। तो एक्चुअली दिस पैसेंजर सर्वाइव। ठीक है, और ये तीनों ट्री कितने हैं? 70% एक्यूरेट है। दे आर 70% एक्यूरेट ईच। तो इन अदर वर्ड्स क्या कह सकता हूँ मैं? इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि इनके इस पैसेंजर के 1 बताने की प्रोबेबिलिटी, यानी सही डिसीजन देने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और करेक्ट प्रेडिक्शन, वो 70% है। एक तरह से यही तो कह रहा हूँ मैं, इसकी एक्यूरेसी जब 70% कहता हूँ मतलब यही तो हुआ। यस और नो? ठीक बात है। तो जरा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? सिंपल, हाँ 1 माइनस, अगर तीनों 70% एक्यूरेट हैं तो 30% रॉन्ग होने का चांस भी है। ये भी बात ठीक हुई। अब एक बात बताओ, मेरे फॉरेस्ट के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? माय फॉरेस्ट इज कलेक्शन ऑफ दीज 3 ट्रीज। इसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है? बताओ कितनी है? यार ये देता है मेजोरिटी से डिसीजन, कि यानी 2 ने अगर करेक्ट डिसीजन दे दिया तो मेरा फॉरेस्ट भी करेक्ट डिसीजन दे देगा। मतलब यही तो हुआ इसका। तो मैं क्या कह रहा हूँ, P1 करेक्ट डिसीजन दे दे, एंड रिमेंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसकी तो बात की थी हमने प्रोबेबिलिटी में। एंड और रूल चलता है प्रोबेबिलिटी का, इफ इवेंट्स आर दिस एंड दिस, तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं उन सब की।
अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ये हो जाए या कुछ और हो जाए, तो वो दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अरे ठीक बात है। तो मेरे रैंडम फॉरेस्ट का क्या चांस है ठीक डिसीजन देने का, मैं वही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ट्री वन की, ट्री वन जो है वो एक्यूरेट हो जाए, P1। और मैं चाहता हूँ ट्री टू जो है वो भी ठीक डिसीजन दे दे, P2। एंड अब P3 चाहे गलत हो जाए, P3 डैश, डैश मीन्स नॉन इवेंट। समझ आ गई बात? मेरे को दो ही तो चाहिए। अगर दो से मेरे को करेक्ट डिसीजन मिल गया तो मेरा फॉरेस्ट ठीक डिसीजन दे देगा। तो दो के ठीक होने के चांस क्या हैं, वो इतने हैं। लेकिन क्या यही एक इवेंट पॉसिबल है या और भी कुछ हो सकता है? देखो, हो तो सकता है। अब की बार क्या कह रहा हूँ मैं, P1 ठीक डिसीजन दे दे और P3 ठीक डिसीजन दे दे, तो P2 चाहे रॉन्ग हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम चल जाएगा। यार ये बात भी तो ठीक हो रही है ना। ये P1 P2 से तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूँ मैं, T1 ट्री वन टू और थ्री की। और भी कुछ हो सकता है, बताओगे जरा। हाँ अब तो समझ आ गया होगा। और क्या हो सकता है? ठीक है, दूसरा और तीसरा ट्री सही डिसीजन दे दें तो अब फर्क नहीं पड़ता, अब पहला ट्री चाहे गलत डिसीजन दे दे तो भी काम चल जाएगा। ये तीनों बातें हो गई। अच्छा एक चीज और बताओ, ये तीनों बातें तो हो गई, ये क्या क्या केस है कि दो ट्री सही डिसीजन दे रहे हैं, तीसरा गलत दे रहा है। एक बात बताओ, तीनों सही देते हैं और इसका डिसीजन तो भी ठीक रहेगा। यस और नो? फॉरेस्ट तो फिर भी ठीक डिसीजन देने वाला है, तीनों ठीक देता तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तीनों सही डिसीजन दे रहे हैं, मेरे फॉरेस्ट का भी ठीक आ रहा है डिसीजन। तो ये चार केस बने हैं जिनमें मेरा फॉरेस्ट भी करेक्ट डिसीजन देगा। देखें इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? क्या प्रोबेबिलिटी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे, यानी 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.3। और ध्यान से देखो तो पहले तीनों केस यही हैं, और यही है ना। पहले तीनों केस क्या है, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.3, यानी इसे सीधे 3 टाइम्स कर दूं तो वही बात हो गई। फोर्थ केस इज डिफरेंट विच सेज 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। कितनी आ जाती है? 0.000, इतने सारे जीरो? आई डोंट थिंक सो। इतनी आ जाती है। 15%? अरे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा तुम एक सिंगल टर्म का बता रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 3 भी तो होगा वो। तुम सिर्फ इस टर्म का बता रहे हो।
लो एक्सप्रेशन भेज दे रहा हूँ, हेयर द चैट बॉक्स, कर लो कहीं कॉपी पेस्ट, देखो कैलकुलेट करके कितना आया। ठीक दिखा रहा है, इतना ही आएगा। हम 80% हो जाना चाहिए था, तो हो गया है। इवेंचुअली हुआ क्या है, कहने का मतलब क्या है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देर आर 3 मॉडल्स which were 70% accurate individually. Just ensembling them, we ended up with how much accuracy? Accuracy has increased considerably. Yes or no? Individually 70% accuracy से रिजल्ट दे रही है, और इनका ensemble it is giving with 78% accuracy. Seems nice, I think. Well, okay, thanks Vasundhara. तो यहाँ तक ठीक है, इसी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? We call it that we have ensembled weak learners into one strong learner. बहुत सारे वीक लर्नर्स T1, T2, T3 जो अपने आप में इतने एक्यूरेट नहीं थे, उनको हमने कलेक्ट किया और हमने वी हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग लर्नर फ्रॉम दीज सेवरल वीक लर्नर्स। तो ऐसा टर्म भी देखने के लिए मिल सकता है एंसेंबलिंग के लिए। देख लो वही हो रहा है एंसेंबल में। एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं, बैकिंग। एंसेंबल्स मॉडल्स में usually you will come across with two kinds of models, we call them bagging and boosting. So I'm not going into boosting for now. We will see that when Python comes. ठीक है, within R we will cover bagging. एंसेंबल करने के दो तरीके होते हैं, मैं जस्ट टू डिफरेंशिएट मैं बता दे रहा हूँ। एंसेंबल करने के दो तरीके होंगे जिनको हम बैगिंग और बूस्टिंग कह रहे हैं। तो बैगिंग स्टैंड्स फॉर, इट इज एक्चुअली अ स्लैंग व्हिच डेवलप्ड फ्रॉम बी एंड एगिंग वी आर कॉलिंग इट। बैगिंग वहां से आता है, एक्चुअली इट इज bootstrap aggregating। तो इन दो शब्दों को मिला करके हमने उसको जल्दी से एक एक्रोनिम, एक स्लैंग कह सकते हो। वी हैव डेवलप्ड इट इनटू बैगिंग। हाँ, जैसे एक्रोनिम तुम डेवलप करते हो, कर रखे हैं ना तुम लोगों ने, देते भी रहते हो मुझे कभी कभी। ये IDK, TBH, WVU, and you know what do I say to them? I say to them WTS. Many times it happens to me. बट ये डेटा साइंस इज ऑल्सो कूल। तो हमारे भी अपने ये एक्रोनिम्स चलते रहते हैं। तो बैगिंग इज वन सच। बैगिंग, थैंकफुली इट मेक्स मी प्राउड।
in front of new age students. Now this is beyond me. FOMO. I will have to Google it. Let's let's stop this here. It's a ठीक है. So it's bootstrap aggregating वो तो अभी देख लिया आप लोगों ने. देख लिया. Aggregation. It is aggregating. We are aggregating multiple models into one big model. और वो सारे अपना अपना डिसीजन बताएंगे. उन्होंने बता दिए. और जो भी उनका एग्रीगेटेड डिसीजन होगा वो हम बता दें. वो हमारे फॉरेस्ट का डिसीजन हो जाएगा. हमारे एंसेंबल मॉडल का डिसीजन हो जाएगा. सो दैट्स एग्रीगेटिंग. व्हाट इज बूटस्ट्रैप? Among all this, what is bootstrap? बूटस्ट्रैप लिटरली क्या मतलब होता है इसका? बूटस्ट्रैप का बताएगा कोई? बूटस्ट्रैप आता कहाँ से है? हाँ, ये ना प्रोग्रामिंग में भी होता है बूटस्ट्रैप का कुछ मतलब. यहाँ पर उसका मतलब वो नहीं है. हैव यू सीन a series Spartacus? Only if you have, or maybe if you have heard the history of Spartacus के बारे में कुछ सुना हो, पढ़ा हो कहीं. Spartacus was a warrior who was turned into slavery, and he fought as gladiator. He trained as gladiator, and finally, what happened? Yes, it is Roman history, not Greek. Roman. This is sad, yaar. You should know this. You haven't heard of Spartacus. Spartacus led Rome into the greatest civil war ever. Till date, it is exemplary. It was third civil war in Rome, and really it shook the continent. No, you are missing it out now. You are mistaking it for 300. No, it is not that. 300 is different. Why I'm mentioning this is Romans used this method to fight against these rebellion gladiators. And what was the strategy they used? What happened was actually slowly and gradually initially there were a few rebellions, and soon enough they were joined by several other slaves from and
different countries and different cities, and it became an army in itself. And it became a very massive task for Roman army. They used this method, and they referred to this method as bootstrap in those days. What was their method? Their method was that one army will fight with this enemy, and very soon, comparatively, very soon, that army will be removed, and then there will be deployed another set of army, another subset of this army. By very soon, we mean 5 days, 6 days, 7 days, or whatsoever जो भी उनका standard रहा होगा. I don't exactly know what do they mean by very soon. How soon is very soon? That we are not bothered about. But this was the idea behind which they are calling bootstrap. There is your enemy. They may be on a mountain, or they are in the field, or they are hiding, or they are exposed, whatsoever, and you are engaging them. You will not deploy your entire army. You will deploy your set of army. They will fight for a very short period of time, and they will be removed back, and then there will be deployed another set. क्या फायदा होता होगा इससे? कुछ फायदा होता होगा इससे? ठीक है, you are getting this all along, and at the same time, last but not the least, in fact very important, at the very same time, your enemy forces are constantly engaged. आपके सोल्जर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं. योर एनिमी इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड. उनको कोई आराम नहीं है. Seems like a good strategy. What's this doing here? हाँ, किसी मैथमेटिशियन ने कहा it worked for Rome, perhaps it will work for data science also. And yes, it works. Not out not out of love for Rome. Actually यहाँ पर हमारी मजबूरी हो जाती है. कारण समझते हैं. I'm showing you just a dummy data. Or maybe I should choose something else. Suppose I have this data. ठीक है. I want to predict something. I have some account numbers, transaction amount कितना था, transaction हुआ किस चीज से है, किस एरिया का है, ये प्रोविंस, ट्रांजेक्शन डेट, डेट से मैं निकाल सकता हूँ मंथ, ईयर, समथिंग. चलो और भी कुछ हो, मान लेते हैं. एंड मेरा मॉडल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? आई नीड टू मेक मल्टीपल डिसीजन ट्रीज. चलो बनाते हैं. से मैंने बनाया डिसीजन ट्री T1. मैंने बनाया डिसीजन ट्री T1 बना. और T1, हाँ जी, कैसे बनता है डिसीजन ट्री? कैसे बनता है डिसीजन ट्री, पता तो है तुम्हें? मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल, यस और नो? Gini index. रिमेंबर. सपोज मैंने ये डेटा फीड कर दिया, डिसीजन ट्री T1 बनने लगा. T1 ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है से प्रोविंस. जस्ट इमेजिन, एग्जांपल दे रहा हूँ. तो ठीक है, प्रोविंस पे स्प्लिट हो गया.
कुछ डेटा इधर जाएगा, कुछ डेटा इधर जाएगा। प्रोविंस वाली कंडीशन में इस तरफ ये जो डेटा आता है, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होती है ट्रांजैक्शन अमाउंट की। मान लेते हैं तो डिसीजन ट्री ट्रांजैक्शन अमाउंट का बन गया। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज से प्रोविंस के बाद में भी एक डेट आ जाती है, तो दूसरा स्प्लिट इधर डेट पे होगा एंड सो ऑन। ऐसे बनता है ना डिसीजन ट्री। ऐसे करके ये ट्री बन जाएगा, जिन्हें इंडेक्स जो भी होमोजेनिटी मेजर आपने लिया है उसके बेसिस पे। अब एक बात बताओ, अब मैं बनाने लगा डिसीजन ट्री 2। हाँ तो बना लो। फिर आपने ये डेटा फीड किया, फिर होमोजेनिटी मेजर ढूंढ के लाएगा। और क्या ढूंढ के लाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस होता है, फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है, फिर इस तरफ डेट होता है, और फिर नीचे वही होता है, फिर नीचे वही होता है, और सब कुछ वही होता है जो ट्री 1 में हुआ था। अरे होमोजेनिटी मेजर तो वही रहेंगे, होमोजेनिटी तो उसी वेरिएबल से आएगी। ट्री बनता कैसे है, होमोजेनिटी मेजर टारगेट करेगा और इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। हम कह रहे हैं कि हर बार वही तो बनेगा डिसीजन ट्री। होमोजेनिटी मेजर वही, डेटा वही, तो जिस वेरिएबल से पहले बेस्ट आ रही थी उसी से अब की बार बेस्ट आएगी। सेकंड नंबर पे वही आएगा जो पहले वाले में है। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या हुई है? नहीं, नहीं लग रही प्रॉब्लम अभी? दोबारा बताता हूँ। यार हमें बनाना था डिसीजन ट्री। मान लेते हैं, चलो उस वाले एग्जांपल से बताता हूँ, इसे छोड़ो डेटा को। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे किसी भी डेटा पे बनाने लगो, किसी भी डेटा पे बनाने लगो, तो हमने बनाया चलो पहला ट्री, एक डिसीजन ट्री बना रहा हूँ मैं उस डेटा से। उस डेटा में वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, से सबसे इंपॉर्टेंट उसे दिखा वेरिएबल। देयर आर सेवरल वेरिएबल्स, वेरिएबल 1 2 3 4 5। उसको दिखा मेरे डिसीजन ट्री को कि वेरिएबल 10 इज गिविंग मैक्सिमम होमोजेनिटी। तो उसने वेरिएबल 10 पे कंडीशन लगा दी कि वेरिएबल 10, या उसी पे लेते हैं हार्ट डिजीज वाले पे जो तुम्हारा था, वो तुमने देख रखा। यही किया था आपके डिसीजन ट्री ने, आपने उस दिन ट्री बनाया। मैं उसका नाम रख रहा हूँ T1। उसने क्या बताया था, थैल सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे होमोजेनिटी सबसे अच्छी आ जाती है। तो थैल, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इधर चले जाओ, फॉल्स हो तो इधर चले जाओ, चले गए। दूसरा उसने क्या देखा कि नाउ सेकंड हाईएस्ट होमोजेनिटी वो किससे आती है, था कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्लोरोस्कोपी या समथिंग। फ्लोरोस्कोपी का कंडीशन था कुछ, मे बी लेस देन समथिंग जो भी था। तो दूसरी कंडीशन उसने ये रखी, इससे आता है सबसे अच्छा होमोजेनिटी। फिर उसने कहा कि और अगली होमोजेनिटी किससे अच्छी आ रही है, इससे कुछ निकाला था उसने, शायद बीपी था या जो भी था, आई थिंक। तीसरी कंडीशन उसने बीपी पे रख दी कि बीपी शुड बी लेस देन 150। बाकी इधर चले जाओ, यस नो इधर चले जाओ। और जब ये सब उसने डिसीजन ले लिए तो फाइनली उसको दिखा कि होमोजेनिटी अब बहुत अच्छे से आ गया है। अब वो फाइनल डिसीजन बोल सकता है, इधर नो बोल देंगे, इधर वालों को यस बोल देंगे। ऐसे लिया था ना उसने उस दिन। यही बात हुई थी सारी। नाउ थिंक अबाउट इट। अभी मैंने इस ट्री का नाम रखा था, इस वेरिएबल का नाम T1। अब मैं कह रहा हूँ मैं दूसरा डिसीजन ट्री बनाता हूँ T2। वही सेम डेटा, हार्ट डिजीज का वही डेटा है। तो चाहे तो रन करके देख लो अभी, दूसरा ट्री डिफरेंट थोड़ी बन जाएगा इससे। डिसीजन ट्री का आइडिया क्या था कि मैं होमोजेनिटी मेजर देखूंगा,
होमोजेनिटी जिस वेरिएबल से सबसे अच्छी आ रही होगी जिस कंडीशन से, वो सबसे ऊपर, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, और ऐसे करके मैं नीचे तक जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ वही डेटा पे अब डिसीजन ट्री तुम दूसरा बनाने लगो, वो दूसरा भी वही चीजें देखेगा, सारे काम वही तो करेगा वो भी होमोजेनिटी देखेगा, उसे भी वही वेरिएबल मिलेंगे, वही कंडीशन मिलेंगी, वही ट्रू फॉल्स, सेम स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके मैंने 10 बार भी अगर डिसीजन ट्री बनाया तो 10 के 10 बार मैंने वेरिएबल नेम तो रख रखे हैं T1 T2, लेकिन ट्री वो अंदर से सेम ही है। अब रैंडम फॉरेस्ट में मेरा आइडिया क्या था? माय आइडिया वाज टू ensemble weak learners, several weak learners. I will ensemble. In other words, the idea was to ensemble several decision trees. मेरा आइडिया ये था कि 10 डिसीजन ट्रीज का ensemble बनाऊंगा और वो एक स्ट्रॉन्ग लर्नर हो जाएगा। मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली? आई एम ensembling द सेम डिसीजन ट्री 10 टाइम्स। तो डिफरेंस कहाँ से होगा? अब समझ आ गई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ आ गई पहले? उसका इंतजाम क्या करेंगे वो तो अभी सोचेंगे। ओके, फेयर इनफ। यस वसुंधरा, वही दिक्कत हो रही है, सेम डिसीजन ट्री बार बार बनाए जा रहे हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉल इन फॉर अ ब्रेक। थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि इसके बाद का आइडिया क्या है। सो कुछ क्वेश्चन है तो बता दो अभी पहले, अगर कुछ ऐसा हो तो नहीं है। उसकी बात भी करता हूँ सिद्धार्थ। So it's 11:51 by my clock, so we continue at 12. Take a break for 10 minutes. Okay guys, see you then. Oh well, back again. Beth, you ping me, those who are here. Just given a quick ping so that I know you are here. Only four? What about others? Okay, very well. So here we go. अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रॉब्लम क्या होगा। We have to take care of something. So we call the, कहाँ तक गई कहानी हमारी? हमने बात शुरू किया था आइडिया ऑफ ensemble. Ensemble is nothing but grouping of weak learners which
turns out as one strong learner. That's ensemble. Among ensemble, we saw there are two methods. One is bagging, other is boosting. Within bagging, we saw what is bagging. Bagging is bootstrap aggregation. Aggregating is something, okay, simple. Aggregating, we are aggregating multiple models. उसमें हमने एक प्रॉब्लम देखा एंड दैट्स वेयर बूटस्ट्रैपिंग कम्स इन. इसमें बूटस्ट्रैप क्या हो रहा है? कौन सा मॉडल देख रहे थे हम? रैंडम फॉरेस्ट बिकॉज इट इज ग्रुप ऑफ many decision trees. What's random about it? What is random about it? Now that's where this problem will be dealt with. होगा क्या जब आप डिसीजन ट्री बनाएंगे? To control this problem, suppose आप बना रहे हो ट्री 1. It will not have entire data. वो पूरे डेटा पे बनेगा. अगर मेरा ट्री 1 पूरे डेटा पे बन गया तो दूसरा ट्री किस पे बनेगा? फिर तो दूसरा ट्री बन ही नहीं सकता ना. वो भी सेम ही बनेगा, तीसरा भी सेम बनेगा. यही प्रॉब्लम आया था. What we are doing is this tree will not have entire data. This tree will have only certain number of rows. इस ट्री को कुछ रोज अवेलेबल होंगे. It will not also have all the variables. It will have few variables. तो समझ पा रहे हो कितना डेटा अवेलेबल हुआ इसको? इसको वही डेटा अवेलेबल हुआ which is commonly highlighted. और इससे बना ट्री 1. यू आर गेटिंग दिस? मेरे को पूरा डेटा अवेलेबल नहीं कराना था ट्री को, नहीं तो वो सेम ही बनेगा. अब उसको ना तो सारे वेरिएबल मिले हैं, कम वेरिएबल मिले हैं, ना ही पूरे रोज मिले हैं, कम रोज मिले हैं. नाउ हु विल डिसाइड दिस? कौन से मिलेंगे? नोबडी. इट इज रैंडम. सो दैट्स रैंडम अबाउट रैंडम फॉरेस्ट. ठीक है, ऐसे करके आपका एक बना ट्री 1. अब हम चले दूसरा ट्री बनाने. ठीक है, बना लो. इसे कौन से रोज अवेलेबल होंगे? और कोई से, वो वाले नहीं, पहले वाले नहीं. अगेन रैंडमली सेलेक्ट होंगे कुछ रोज और रैंडमली सेलेक्ट होंगे कुछ वेरिएबल्स. मे बी दिस वन, दिस टाइम अब की बार ऐसा डेटा सेलेक्ट हुआ है. तो इसके बाद फाइनली कौन सा डेटा? ये वाला, ये वाला और ये वाला. ये ट्री इतने ही डेटा पे बन पाएगा. तो ऐसे करके दूसरा ट्री बन गया. ठीक है, ये भी ठीक हुआ. एंड इट गोज ऑन. नाउ जस्ट इमेजिन हमने बना दिया 10 डिसीजन ट्री ऐसे सबको रैंडमली. अब इस डेटा को डेटा मत समझना. दीज आर जस्ट 10-20 रोज एंड 4-5 वेरिएबल्स. जस्ट इमेजिन प्रॉपर डेटा, रियल टाइम डेटा, few thousand of rows and maybe 10, 15, 20, 50 variables. और इतना कुछ रैंडम चल रहा है. तो नाउ आई कैन रेस्ट अश्योर कि ये ट्रीज डिफरेंट ही बने होंगे. यस और नो?
हर बार एक नया डिसीजन ट्री बन रहा होगा। So with this method, I end up with having multiple decision trees, different decision trees, और इनके ensemble को मैं कह रहा हूँ random forest. Now within this, इतना random होने के बाद भी there are some conditions on top of that. What are the conditions? We call them again, बड़ी-बड़ी बातें हैं, घबराने की बात नहीं है कुछ भी, सिंपल सी चीज़ है। ये समझ आ गया ना रैंडम कैसे हो रहा है इसमें। एवरीथिंग विल कीप हैपनिंग रैंडमली एक डिसीजन ट्री को कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे। अगर मेरे पास 10 वेरिएबल हैं, 10 में से 3 या 4 जितने भी वो हो रहे हैं, तो कुछ मिलेंगे। सारे रोज़ नहीं मिलेंगे। इफ आई हैव 10,000 रोज़ तो मे बी उसको तो 6,000 रोज़ अवेलेबल होंगे, सारा डेटा अवेलेबल नहीं होगा। देन देयर आर प्रॉपर्टीज और वी कैन से द कंडीशन ऑफ रैंडम फॉरेस्ट के उसमें क्या कहते हैं। तो देयर आर जनरली टू important things we are calling them. One is diversity. Diversity in the sense, कैसे बनाया था हमने, ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 ट्री 4 एंड सो। डाइवर्सिटी इन द सेंस, सपोज मैंने बोला था 10 रैंडम फॉरेस्ट या 10 ट्री होने चाहिए इस रैंडम फॉरेस्ट में। मे बी इट शुड कंटेन 10, नॉट 10, वैसे 100 डिसीजन ट्रीज होने चाहिए। हाँ तो ठीक है 100 बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे। सो द डाइवर्सिटी इज द चेक, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये ट्रीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्पाइट सो मेनी थिंग्स हैपनिंग रैंडम, इसके बावजूद बाय चांस ऐसा हो सकता है दो ट्री, देयर आर टू ट्रीज व्हिच आर एग्जैक्टली द सेम। हो सकता है ना जब रैंडम ही हो रही है सारी चीजें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वन थिंग। कोई भी दो ट्रीज सेम नहीं हो सकते। व्हाट इफ मेरे को 100 ट्रीज बनाने थे और 100 ट्रीज बनना पॉसिबल ही नहीं है इतने डेटा में, तो वो 100 ट्रीज बनाएगा भी नहीं, उससे पहले रुक जाएगा। दैट्स डाइवर्सिटी। मैंने जितने ट्रीज बोले हैं वो सारे यूनिक बनेंगे। अगर यूनिक नहीं बन पा रहे हैं तो उससे पहले रुक जाएगा। जितने यूनिक बना पा रहा है उतने ही बनेंगे। ठीक है। T100, wow, what a legendary name I have written. You know this fellow? Somebody? चलो छोड़ो। Yes, exactly. Another property which a random forest must possess is, we call that acceptance. Now what is this? Acceptance में हम क्या कह रहे हैं? These T1, T2, T3 जो इंडिविजुअल मॉडल बन रहे हैं, दिस शुड हैव मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल। अब इस बात का मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअल मॉडल्स बन रहे हैं T1, T2, इनका जो एक्यूरेसी है दैट शुड बी 50% से तो ज़्यादा एक्यूरेसी आना चाहिए। सही बात है, और ये सही बात तो है, गलत थोड़ी कह रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ मेरे को वीक लर्नर चलेगा, लेकिन कम से कम वीक लर्नर तो हो। अगर उसका एक्यूरेसी 50% भी नहीं है तो इससे अच्छा तो हेड टेल करके डिसाइड कर लो ना, फिर प्रिडिक्शन की जरूरत क्या है। हेड है तो सर्वाइव्ड, टेल है तो नॉट सर्वाइव्ड। 50% एक्यूरेसी तो उसकी भी है। सही बात है। दोनों बातें ठीक होगी। अब ये पता कैसे चलेगा? ये पता कैसे चलेगा? देयर इज अ पैकेज, इंस्टॉल इट। रैंडम फॉरेस्ट, एफ कैपिटल। वैसे तो ऑटो सजेशन आ जाएगा, बट एनीवे आई एम टाइपिंग। इंस्टॉल दिस पैकेज रैंडम फॉरेस्ट, और किसी तो डेटा सेट पे देखते हैं। हाँ जी, किस सेट पे देखोगे? कोई सा कर रखा है क्या मैंने सर? तुम्हारे लिए डेटा रेडी हो जो। चलो, एक तुम्हारा टाइटैनिक वो तो चल ही रहा है। एचआर वाले पे देखोगे? चलो, उस पे कर सकते हैं। अरे यार, सारी चीजें छोड़ो इसको। ओके, डिसीजन ट्री तो आपने बना लिया है। डिसीजन ट्री तो आप बना के देख चुके होगे इस पे। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, वही ट्रेन वैलिडेशन आ चुके हैं, वही सारा डेटा। जानते ही हो तुम। स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम कीपिंग इट एज सच। मैंने कुछ नहीं ज़्यादा किया है। आई जस्ट वांट टू शो यू रैंडम फॉरेस्ट बनेगा कैसे। सो रिक्वायर द पैकेज रैंडम फॉरेस्ट।
creating the random forest model, the function is random forest। और पैरामीटर्स क्या क्या देने हैं? पैरामीटर्स कुछ तो आप लोगों को मालूम है, सर्वाइव टिल्डा डॉट, दैट इज सिंपल, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना। पैसेंजर आईडी है अभी भी, अच्छा ओके। तो एक तो ये बात बतानी होती है, और क्या बताना होता है? डेटा, आई वांट टू यूज ट्रेन डेटा लीविंग द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम छोड़ गए। देन वी मेंशन अ पैरामीटर entries which stands for number of trees। देख लो, चाहे हेड डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, देख लेना उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। क्या क्या पैरामीटर हम दे सकते हैं? रैंडम फॉरेस्ट, दिस इज द मेथड टू यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी किस चीज को कह रहा है? फॉर्मूला इसी को कह रहा है। विच वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। Then there are many parameters here, data, subset, any action, this, that, this, that, this, that, right? Yes, it is, very, very complex model and very, sophisticated model. So बहुत सारे, you can give many parameters to tune this. However, we will stick to which are mandatory, जो हमें देने ही चाहिए। So this is entry, I am giving entry। हाँ, ये तो बताना पड़ेगा ना कितने ट्री बनाने हैं। I am saying build 100 trees। Then there is another parameter, we call it do trace। I'm setting it to true। अभी बताता हूँ इससे होगा क्या। Here is the chat box। तो एक सिंटेक्स में आपको वो दिया है, बाकी ट्यूनिंग के लिए वो हम देखेंगे अभी आगे क्या क्या पैरामीटर दिए जा सकते हैं। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। जैसे ही मैंने ये फंक्शन रन किया है, यू सी उसने रन किया, क्या बता रहा है? नंबर ट्री, विच नंबर ऑफ ट्री यू हैव, कौन से नंबर का ट्री बन रहा है? पहला ट्री बना, दूसरा बना, तीसरा बना, एंड इट इज checking them and running them, checking them, running them and going। ठीक है, then there is something OOB। what is OOB? ये वही है जिससे मैं बात कर रहा था अभी, कि एक्यूरेसी मिनिमम 50% तो होनी चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? मैंने तो रैंडम फॉरेस्ट बना दिया, रैंडम फॉरेस्ट बनाया, मैंने बोला ट्रेन डेटा से बना दो, और बन गया। ये कहाँ पता है कि इस ट्रेन की, इस डेटा की, ये जो ट्री बना है, ये 1 ट्री, ट्री 2, ये ट्री 3, आर दे एक्सेप्टेबल? Acceptable in the sense, in other words, are they at least 50% accurate, more than 50% accurate? ये पता कैसे चलता है, कैसे डिसाइड करता है वो? उसने रैंडमली ट्री बनाया, मैंने बोले 100 ट्रीज बनाने के लिए, हाँ ठीक है बिल्कुल बनाएगा। नाउ दिस चेक इज इजी, वो तो वो देख सकता है, मेरा मॉडल देख सकता है कि ये पहला ट्री जो बना, फिर ये दूसरा जो बना, ये पहले जैसा ही तो नहीं बन गया। क्या इसके सारे स्टेप्स पहले जैसे हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ड्रॉप इट, राइट। एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगा? नाउ
थिंक अबाउट इट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मेरे डेटा को इसको ट्री को पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो सपोज आई एम बिल्डिंग दिस ट्री वन, आई एम बिल्डिंग दिस ट्री वन, और इसको कौन सा डेटा अवेलेबल हुआ है? इसको सपोज अवेलेबल हुआ है ट्रांजेक्शन डेट, दिस डेटा, और इसको अवेलेबल हुई है कौन सी रो? मे बी बस ये वाली रो। राइट, समझ गए? तो इवेंचुअली कौन सा डेटा अवेलेबल हुआ है इसको? इस ट्री के पास, ट्री वन के पास कौन सा डेटा अवेलेबल हुआ? सिर्फ इतना। ठीक बात है। नॉट दिस वेरिएबल, नॉट दिस। नाउ थिंक अबाउट इट, ये जितना डेटा इसको अवेलेबल नहीं हुआ, जो डेटा इसको अवेलेबल नहीं हुआ, उस पर टेस्ट कर सकते हैं इसको? यस और नो? बाउंसर हो रहा है क्या? बाउंसर तो नहीं जा रहा? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, बट ट्राई टू बी विद मी। नहीं नहीं हो रहा हो तो बता देना, वी कैन टेक टाइम, वी कैन गो स्लो। देखो ये डेटा था आपका हार्ट डिसीज वाला डेटा, उसी की बात करो। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो डिसीजन ट्री बनाया उसको ये सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए रैंडमली कुछ वेरिएबल्स उसको मिलेंगे। सपोज इसको सारे वेरिएबल नहीं बताने हैं मेरे को हार्ट डिजीज डिटेक्ट करने के लिए। इसको मिला एज, पेन टाइप, कोलेस्ट्रॉल, मे बी इसको ये 4-5 वेरिएबल मिले, पूरा डेटा नहीं मिला। यहाँ तक बात ठीक हुई? इसको ये नहीं मिला, ये वेरिएबल नहीं मिले, ये सब वेरिएबल नहीं मिले। यहाँ तक बात ठीक हुई? अब मैं कह रहा हूँ कि इसको सारे रोज भी नहीं मिलेंगे, इसको कुछ रोज मिले जो हाइलाइटेड हैं और बाकी नहीं मिले। रैंडमली मान लो अभी फिलहाल के लिए कि शायद रैंडमली चलो डिसाइड हो गए थे। इतना इतना मिला इसको डेटा। मैं कह रहा हूँ ये जो नहीं मिला, डिसीजन ट्री बन गया होगा, जितना डेटा अवेलेबल हुआ उससे डिसीजन ट्री बन गया। अब जब बन गया, आई एम सेइंग दिस डेटा विच वाज नॉट अवेलेबल टू दिस डिसीजन ट्री, इट कैन एक्ट लाइक टेस्टिंग डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर ट्री। इस एक ट्री के लिए तो ये काम कर सकता है। अवेलेबल था नहीं उसको, अनसीन डेटा है उसके लिए। ठीक है ना? तो टिपिकली फॉर एवरी ट्री, यूजुअली जो ये रैंडमली सेलेक्ट होता है, ये अराउंड 60%, 50 to 60% डेटा सेलेक्ट होता है। 50% to 60% डेटा ट्री बनाने में यूज होता है, रैंडमली सेलेक्ट होगा, मतलब डेटा मतलब रोज। तो बाकी जो बचा
बाकी जो 40% बचा वो क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक वैलिडेशन डेटा फॉर दिस। गॉट दिस प्रॉब्लम? उससे पता चल रहा है कि ये ट्री एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ना कर लिया। हाँ जी, दिस विल हैपन फॉर ईच ट्री। तुम देख रहे हो कितना काम हो रहा है। तुमने तो एक फर्जी सा कोड लिखा और रन कर दिया, लेकिन कितना काम बता दिया तुमने आर को। मजे की बात ये है, बेचारा कर भी रहा है चुपचाप, कुछ कह भी नहीं रहा तुमसे वापस। सही है। तो क्या इसमें कुछ मजेदारी है? तो दिस OOB इज दिस OOB स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ बैग एरर। OOB का मतलब होता है आउट ऑफ बैग। आउट ऑफ द बैग एरर। हाँ जी, इन अ सेंस आप ये भी कह सकते हो सिद्धार्थ कि आपके डेटा से 100 डिसीजन ट्रीज बन रहे हैं। रैंडमली कुछ रो सेलेक्ट होके, कुछ वेरिएबल सेलेक्ट होके पहले ट्री को मिले, फिर सेम दूसरे ट्री के लिए हुआ, फिर रैंडम सिलेक्शन हुआ, फिर से रैंडम सिलेक्शन हुआ, एंड इट हैपेंड 100 टाइम्स। सो इन अदर वर्ड्स, बिहाइंड द स्क्रीन देयर आर 100 ट्रेन एंड वैलिडेशन बन रहे हैं। हर ट्री टेस्ट हो रहा है। ठीक है जी, देख रहे हो ना कितना कमाल हो रहा है। Isn't this fascinating? बोरिंग हो रहा है? दिस शुड बी माइंड बॉगलिंग यार। You should be amazed by the intelligence of the people who developed this. Not now, I missed it somehow। चैट में शुभम डाल रहा था थोड़ी देर पहले। बोरिंग हो रहा है इसका मतलब आई शुड पिक अप सम पेस। Yeah, yes, it should be alluring, yeah, definitely। चलो, coming on to next thing, what is this do dot trace? What is this do dot trace? इससे क्या पता चल रहा है? ये थी अभी आपके पास, दिस वाज टाइटैनिक डेटा सेट। हाँ, कितना महारथी डेटा लेके बैठे हो तुम। ये रहा ट्रेन डेटा सेट। इसमें 600-700 रोज हैं और 8-10 वेरिएबल्स। बट यू रियलाइज नाउ हाउ मच, हाउ
You know what amount of work is going on behind the screen. You are getting that sense. एक्चुअली काम कितना ज़्यादा हो रहा है. तो देयर आर 100 ट्रीज बना दिए बेचारे ने. उन 100 के 100 ट्रीज में अच्छा सारा डेटा भी नहीं जाना चाहिए, तो रैंडम सिलेक्शन भी होगा. रैंडम सिलेक्शन हो गया उन ट्रीज को बनाने के लिए, तो बाकी जो डेटा बच रहा है उस पे वो ट्रीज टेस्ट भी हो रहे हैं, जिससे आपको आउट ऑफ द बैग एरर बता रहा है वो. इट इज टेलिंग यू कि ट्री 1 बना, आउट ऑफ बैग एरर उसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, जितनी भी है जिसकी. क्योंकि सारे ट्रीज एक्सेप्ट भी होने चाहिए. तो डाइवर्स भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है बेचारा. नाउ दिस वाज स्मॉल डेटा सेट, तो जल्दी से बन गया ये 100 ट्रीज आपके ऐसे बन गए. यू मे बिल्ड अ मॉडल व्हेन यू हैव रियल टाइम डेटा. एक बड़ा डेटा सेट आपके पास हो, लाइक एचआर जो है आपके पास, तो यू मे यूज अप टू, यू नो देयर मे बी नॉट ओनली 100, देयर कैन बी 500 ट्रीज, देयर कैन बी 1000, देयर कैन बी 2000 ट्रीज. ऐसे मॉडल भी आप बनाने के लिए छोड़ सकते हैं. व्हाट दिस डू ट्रेस इज डूइंग हियर इज, अगर मैंने ये डू ट्रेस नहीं दिया, if I don't give this do trace is equal to true, तो फॉरेस्ट बनेगा. होता क्या है ऐसे में, दिस मॉडल इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क गोइंग ऑन. अगर आपने रियल टाइम डेटा पे एक बड़ा सा मॉडल बनाने का छोड़ दिया, यहाँ पर एक लाल बत्ती जल जाएगी. देखिए वो पहले आपने देखी है ना वो पहले, विच शोज दैट समथिंग इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. कोई कमांड अभी एग्जीक्यूशन में है. जब तक वो एग्जीक्यूशन में है और कुछ नहीं होगा. तो होगा क्या, इट विल बी ऑन एंड यू विल बी वंडरिंग कि मेरे फॉरेस्ट का हो क्या रहा है. इज इट इज आर वर्किंग, या सिस्टम हैंग हो गया, या पता नहीं क्या हो गया. सो दैट्स वेयर दिस डू ट्रेस हेल्प्स. उससे क्या होगा कि यहाँ आपको वो प्रोग्रेस नजर आती रहेगी. अभी तो उसने जैसे छाप दी ना 100 के 100 ट्री के बन गए बन गए बन गए, वो इतना जल्दी से होगा नहीं काम. तब आपको यहाँ पर एक एक करके वो दिखाता रहेगा कि इतनी ट्री तक वो पहुँच गया है. एंड यू कैन ट्रैक दैट एवरी मिनट और 2 और 5 मिनट्स के ट्री बन रहा है, एक आगे बढ़ गया, एक आगे बढ़ गया, एक आगे बढ़ गया. तो इट इज दैट फैसिलिटी. मॉडल में कुछ नहीं कर रहा वो, इट इज जस्ट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडल. यहाँ तक ठीक होगा. प्रेडिक्शन देख लें करके, कैसा प्रेडिक्शन आता है रैंडम फॉरेस्ट का, जल्दी से. Let's predict the survival by this time. Model is random forest. New data जिस पर हमें टेस्ट करना है, that is validation. And what is predicted survival? You see this? It is a factor with two levels, 0 and 1. उसने सीधे डिसीजन बताया. Let's check this out. तो predicted survival versus validation का actual survival call. And positive तो हम 1 को ही रखेंगे. क्या था प्रेडिक्शन आया है? Voice breaking. Just give me a moment. Please confirm if my voice is audible now. Is it clear? Okay, fine. Could you tell me till what point you were with me and then you lost my voice? कहाँ तक बात हमारी ठीक ठाक हो गई थी? I was explaining do trees facility.
द डू ट्रेस आर्ग्यूमेंट। तो ये आ गया था, यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा था। ओके, तो उसके बाद कुछ खास किया भी नहीं है, जस्ट प्रेडिक्शन जो हम हमेशा करते हैं। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट फंक्शन इज टू डायरेक्टली प्रेडिक्ट। इस बार हमने बोला है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, एंड जिस मॉडल पे प्रेडिक्शन चाहिए, जो अनसीन डेटा हम देना चाहते हैं, वो वैलिडेशन डेटा है, वैल डेटा। तो इस पे हमने देखा, प्रेडिक्शन कर लिया, और उसी का हम कॉन्फिगर मैट्रिक्स चेक कर रहे हैं। व्हेन वी चेक कॉन्फिगर मैट्रिक्स, डू यू सी द मॉडल इज satisfactory? Is it so? What do you say? कुछ सही गलत हो गया है क्या? एक्चुअली हो गया है। यू गेट दैट राइट? ठीक बात है। अभी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी में कोई बैलेंस नहीं है। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि उसने आउटपुट हमें इस तरह से नहीं दिया है जैसे प्रोबेबिलिटीज का हमें आता था। उसने कैसे दे दिया? उसने सीधे डिसीजन बताया है, 0 एंड 1। एक्चुअली बताया उसने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही है, लेकिन उसने कट ऑफ बाय डिफॉल्ट 50% ले लिया है, और उससे तो गलत आता ही है। तो व्हाट वी डू इज वी नो पैरामीटर इन प्रेडिक्ट फंक्शन। क्या पैरामीटर था जी वो? टाइप। अगर मैं टाइप बता दूं तो प्रेडिक्ट फंक्शन मेरे को प्रेडिक्शन वैसा देता है जैसा मैं चाहता हूँ। मेरे को कीवर्ड पता होना चाहिए। तो द कीवर्ड फॉर टू गेट output as probabilities by a random forest model, the keyword is probabilities prob. Here in the chat box. जब मैं ऐसा करता हूँ तो प्रेडिक्शन कैसा आता है? अब प्रेडिक्शन वैसा ही आएगा, हर एक के लिए वो प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। जो भी वैलिडेशन डेटा सेट में रोज थी, उनके लिए वो प्रोबेबिलिटीज बताते जा रहा है कि इसके 0 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी। ऐसा ही होता था डिसीजन ट्री में, तो ऐसा ही होता था। हाँ, तो डिसीजन ट्री ही है ये। एंड ऑफ द डे इट इज कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्री, वही कर रहा। लेट्स चेक दिस आउट। एक स्टेप बढ़ गया मेरे लिए। वो क्या? अब मेरे को मैनुअली कट ऑफ लगानी होगी। आई नीड टू प्रेडिक्ट सर्वाइवल, इफ एल्स कंडीशन। ये तो आता है तुम। कंडीशन क्या है? हाँ जी, 50%। उससे तो काम चलता नहीं। अभी देखा है बैलेंस आया नहीं है, 30 लेके देख के। तो मैं कह रहा हूँ 1 बोल दो, कम है तो 0 बोल दो। एंड सिंस मेरे को एज फैक्टर चाहिए होगा इवेंचुअली, एज फैक्टर। चेक दिस आउट। Use both the columns. I need only column number 2 of this matrix. And what do we have? What do we have? 84%, 82%, 86%. ठीक है जी। और ट्वीक करना है तो और कर लो, हो जाएगा।
0.27 रख लेता हूँ तो बिल्कुल ही बैलेंस हो जाता है। 83%, 83%, 83%, ऑल 83। ठीक है जी। अब तेरा एक बात बताओ, कौन सा तीर मार दिया इसने? आप तो कह रहे थे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, इतना तो पहले ही आ रहा था। अरे तो पहले ही आ रहा था, इतनी एक्यूरेसी तो हर बार इतनी आई है लॉजिस्टिक से, केएनएन से। इनफैक्ट केएनएन तो शायद इससे भी अच्छी आई थी। नहीं, ध्यान है कि नहीं? चलो करके देख लेना, अपने हाथ से करके देखो, समझ आएगा। ठीक है, इसका ड्रिल कहाँ से कहाँ तक देना है मेरे को आपको? रैंडम फॉरेस्ट, प्रेडिक्टेड, कन्वर्ट इट टू सेल्स एंड फाइनली कॉन्फिगर मैट्रिक्स। यूजुअली ऐसा ड्रिल रहता है। हाँ जी, ठीक ठाक। अभी बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई ओपिनियन, एनीथिंग? नो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, आई एम वेटिंग पीपल। Shankar, why do we say a learner is weak? So we are not saying it is a that something is weak learner because weak कैसा डिफाइन करोगे आप? किसको बोल रहे हैं वीक लर्नर? क्या 60% एक्यूरेसी इज अ वीक लर्नर, या 80% एक्यूरेसी दैट इज अ वीक लर्नर, और 70%? तो वीक लर्नर की डेफिनेशन ऐसे नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन कंपैरिजन। जैसे हमने देखा था कि 3 डिसीजन ट्री जो 70% एक्यूरेट थे, दे आर वीक इन व्हाट रिस्पेक्ट? इन रेस्पेक्ट ऑफ द एंसेंबल ऑफ दीज 3 ट्रीज। इनको जब एंसेंबल कर लेते हैं, वो एक स्ट्रॉन्गर लर्नर हो जाता है। तो डोंट टेक इट लाइक वीक एंड स्ट्रॉन्ग, लेट्स कॉल देम वीकर एंड स्ट्रॉन्गर। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग। ओके, दैट्स गुड टू नो। चलो दिखाता हूँ जल्दी से।
अभी टाइम है थोड़ा सा। एचआर वाले डेटा पे आप सभी का रिजल्ट देख चुके थे। रैंडम फॉरेस्ट रह गया था। रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली देखा ही आज। टू दिस कुछ चीजें मुझे बतानी होंगी। एंट्री आई एम सेइंग एंट्री इज 500 and I am saying do trace and I am saying okay trace at okay what's your data structure? Okay, people, this is also going to be a trick with random forest. इसको शायद हमने बात की थी पहले जब फैक्टर पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। देयर विल बी एल्गोरिदम्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट। इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल तभी समझ आएगा जब वो फैक्टर फॉर्म में होगा। एज कैरेक्टर होगा तो नहीं समझे। तो वही कर रहा हूँ। You see, I am building 500 trees. ये लाल बत्ती ऑन हो गई है। देख रहे हो अब टाइम लेगा ये। इसीलिए डू ट्रेस देते हैं। अगर डू ट्रेस में मैंने ट्रू दिया है तो हर ट्री का बताएगा। इफ आई हैव गिवन डू ट्रेस इज इक्वल टू लाइक 10 तो 10 के इंटरवल पे दिखाता जाएगा। हाँ हर एक का देख के भी क्या करूँ। बट वी शुड ट्रेस एटलीस्ट। ये पता चलना चाहिए कि ट्रेसिंग हो रहा है कि नहीं। मेरे को पता लगनी चाहिए कि प्रोग्रेस हो रही है। सच में फॉरेस्ट बन भी रहा है या मशीन हैंग हो गई। सो फॉर नाउ इट इज गुड। इट इज गोइंग गुड। इट इज प्रोग्रेसिंग। Meanwhile, I will need to tweak this also. Okay, so our forest is ready. So let's validate our forest model. तो again val data में भी मैंने वही किया है, फैक्टर में कन्वर्ट किया है। And now we are predicting by random forest model. We have to do that as extra step because I need probabilities. Then I am calling our spread. It should become what? It should become a factor. If else, condition क्या थी? Our spread should be greater than something. For now, keeping it 10%. We call it 1. Else we call it 0. As factor. Let's not call it or spread directly. Let's call it. We are promoting promotions देख रहे हैं ना। So this is random forest का prediction and this is validation data में is promoted column positive is equal to 1. See the configure matrix. Still high. Better.
Finally, the fruit is sweet. आप देखते हुए आ रहे थे ना अभी क्या क्या हुआ था इनके साथ, क्या क्या हुआ था इसमें एचआर वाले प्रॉब्लम में। दोबारा दिखा रहा हूँ जल्दी से। हमने एचआर डेटा बनाया, वी स्टार्टेड ऑफ विद ज्योमेट्री बेस्ड मॉडल्स और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने करके एक फाइनली देखा था। व्हेन वी ट्राइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी कुड अटेन 71% एक्यूरेसी, जब ये बैलेंस होता है तो 71% एक्यूरेट हम पहुंचे थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। देन वी ट्राइड KNN, और KNN ने क्या किया था, एक तो KNN स्लो हो गया था बहुत ज़्यादा। रिमेंबर KNN ज्योमेट्री पर सारे पॉइंट बैठाएगा, ट्रेन के बैठाएगा, फिर टेस्ट के बैठाएगा, फिर सबके नियरेस्ट नेबर देखेगा। कितने नेबर देखेगा, जितने बताए हैं हमें। अब हमने 200 बता दिया तो गलत कर दिया था उसने। रिमेंबर दैट, क्या प्रॉब्लम आया था उसमें। अरे हो के निपट गए। ठीक है, इवेंचुअली कुछ हो नहीं पाया था खास। डिसीजन गलत दे दिए थे सारे इसने, क्लास इम्बैलेंस की वजह से। डिसीजन ट्री बना के देखा था, डिसीजन ट्री भी बड़ा अजीब सा बना था। कैसा बना था, वो एक ही पैरामीटर पर सारे डिसीजन ले लेना चाहता था, गलत कर रहा था। यू रिमेंबर दैट टू, हुआ था ऐसा। जो लोग थे उस दिन वो जान रहे होंगे किसकी बात हो रही है। KNN, ये लो, हो गया KNN। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री की बुरी हालत है। वो बेचारा होमोजेनिटी देख रहा है, एक ही जगह पर उसे सारी होमोजेनिटी दिखती है। गलत हो गया। अब की बार स्पेसिफिसिटी चाहिए। हाउएवर डिसीजन फॉरेस्ट या रैंडम फॉरेस्ट, वो तो आपने देख लिया अभी। डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, यस और नो। अभी अभी तो देखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कहीं अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। 71% से कहाँ पहुंच गए हो, 78% तक पहुंच गए हो। यही इच्छा थी। बाय द वे, कोई और हैकाथॉन लिया है आप लोगों ने, किसी और हैकाथॉन पे काम करना शुरू किया है। HR वाला वो तो तुमने मुझसे करा लिया, मना करते करते। बता दीजिए आप लोग, बिकॉज इस कंफ्यूजन में मत रहना कि कौन सा हैकाथॉन करें, हमें समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं देता हूँ फिर। बिकॉज आप लोगों का प्रोफाइल, अच्छा मैं ही दे दूँ, मैं ही करूँ जो भी करूँ, तुम सारे KNN हो रहे हो। चलो ठीक है, स्टे विद मी फॉर अ कपल मिनट्स, देखता हूँ।
आप लोग ऐसा कीजिए। हेयर कैगल पे मैं देख रहा हूँ, कैगल के बहुत टिपिकल वाले हैं ये, तो अभी इनको नहीं कर रहे। दे आर एक्चुअली मशीन, दे आर नॉट ओनली मशीन लर्निंग, दे आर गोइंग इनटू डोमेन्स ऑफ एनएलपी एंड न्यूरल नेटवर्क्स। ये या तो कंप्यूटर विजन के आ रहे हैं या फिर वैसा, इनको तो छोड़ दो। बट ऑन दिस एनालिटिक्स विद्या पे आप दो करो कोई से, वन विद कॉन्टिन्यूअस टारगेट। आई थिंक दिस बिग मार्ट सेल्स कैन डू जस्ट गुड। ये वाला ले लो, बिग मार्ट सेल्स प्रिडिक्शन। ठीक है, बताओ कौन सा लोगे। दोनों कॉन्टिन्यूअस टारगेट हैं विच आई कैन सी। दिस वन इज दिस बिग मार्ट सेल्स प्रिडिक्शन, वन इज दिस ब्लैक फ्राइडे सेल्स। कोई सा भी ले लो, इनमें से दोनों मोर और लेस सेम से प्रॉब्लम है। ठीक है, 20 डेज बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा तो तुम्हारा रैंक बनना शुरू हो जाएगा। 20 डेज आर मोर देन इनफ। ओके, ब्लैक फ्राइडे सेल्स, इट इज डन दैट। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल्स, सबमिट ऑन दैट। कैटेगोरिकल टारगेट में तुम ये ले सकते हो, दिस इज वन इज लोन प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, दिस वन, और you may use this one also. This is also very interesting problem, MNIST. I would say देखो कोई सा तो देखो। प्लस वन अपवर्ड्स वाला रहने दो अभी थोड़ा सा। देख लो, एक लोन प्रिडिक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है विच इज दिस, यू नो, अगर करना चाहते हो तो ये कर लो, ये सिंपल प्रॉब्लम होगा लेकिन कॉमन बहुत है एक्चुअली लोन प्रिडिक्शन, यू नो। जैसे ही किसी को बताते हैं कि लोन प्रिडिक्शन वाला हैकाथॉन के, इट इज बोरिंग हो गया थोड़ा सा बार बार बात करना इसका। दिस वन इज, यू नो, वेरी फैंटास्टिक प्रॉब्लम। इसका मैंने देखा था थोड़ा सा। इनफैक्ट अगर टाइम, अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो शायद बात करूँ इसके बारे में फिर आगे। ये प्रॉब्लम अच्छा लगा मेरे को वाकई। MNIST वाला है, अगेन वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब। और ऐसे डेटा सेट पे, यू नो, दिस काइंड ऑफ डेटा सेट, दीज बिकम स्टैंडर्ड्स। इनके बारे में सुना है, पढ़ा है, बताओगे, मज़ा आ जाता है जरा बात करने में। MNIST कर लो, ऐसा करो, करके देखो इसको। ठीक है। ऑल्सो इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, डोंट गेट वैक बाय दिस के ये क्या क्या बता दिया, इतना सारा काम हो गया, 2 हैकाथॉन हो गए। ब्रेक इट डाउन एंड स्टार्ट मूविंग स्लोली। Like you have 2 hackathons to submit and both are getting submitted within 20 days. Okay, very fine. No problem at all. पहला decision, 10 days for this, 10 days for this. This is classification problem. This is regression problem. Start working in teams. ठीक है, ब्रेक इट डाउन। डेली 1 घंटा 2 घंटा देना है। पहले एक सबमिट करना है 10 डेज में, मान के चलो। दूसरा अदर 10 डेज में। सिंपल। पेयर अप, टीम अप। एक आदमी इधर कुछ करो, एक आदमी इधर कुछ करो। बताते चलो एक दूसरे को कि ये मिल रहा है, ये आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यू गॉट द आइडिया। व्हाट आई मीन टू से इज डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि ये इतना काम होगा कैसे। कुछ भी काम नहीं है, सिंपल।
one step at a time, and you are good to go. ठीक है, इसके बहाने से सारे मॉडल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का हैंड्स ऑन. दैट्स समथिंग आई वांट यू टू. एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक आप अपने हाथ से करोगे. आई वांट यू टू डू इट एंड ट्रस्ट मी. बाकी बाकी मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तुम कुछ भी सीख रहे हो. वॉट एवर आई टीच, वॉट एवर यू लर्न, दैट इज वन पार्ट. दिस इज वंडर. दिस इज गोइंग टू डू वंडर्स. दिस इज गोइंग टू क्रिएट मैजिक. चलिए ठीक है, लेट्स वाइंड इट अप. इनफ फॉर वन डे. लेट्स bootstrap. चलो, turning off recording. I'll stay for another minute if there is any question. हाँ, if no further question, जिनका कोई question नहीं है, they are free to leave. Bye bye and see you tomorrow.